से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूँ नुज़हत नूर। मैं हूँ बिलाल असलम। अभी आपको आज़रबाईजान में बराह रास्त लिए चलेंगे, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब कर रही हैं। And Azerbaijan into modern, vibrant and globally connected place is truly commendable. My father, ladies and gentlemen, the former Prime Minister of Pakistan and the founding leadership of Azerbaijan, particularly late Haider Aliyev, may his soul rest in peace, shared a relationship rooted in trust, mutual respect and deep, profound friendship. They were true brothers in spirit, and that bond of friendship between the two countries continues to define the strength of Pakistan-Azerbaijan relations today. And so, standing here today in Baku, I feel I have not come to a foreign land. I have come home. And I consider it as a matter of honor that my first visit to any Central Asian country is here in Baku, a city that represents resilience, transformation, and progress. Excellencies, I bring to you a story from Punjab, Pakistan, a province of more than 130 million people, on a journey of transformation, on a journey of challenge, on a journey of indomitable will, on a journey of unwavering resolve to redefine how cities are built and how dignity is delivered. At its heart, ladies and gentlemen, lies a simple truth. Cities become resilient only when development is people-centric, climate-conscious and data-driven. Cities are not just roads and buildings. They are human stories where dignity is either protected or denied. When I took oath as the first woman Chief Minister of Punjab, I knew I was not inheriting a position. I was inheriting a responsibility. A responsibility to the woman walking miles, carrying water for her family, child breathing polluted air, and family living without secure shelter, and citizens waiting for promises, not for promises but for dignity. And so, ladies and gentlemen, we launched the historic Punjab Economic Registry, the first ever province-wide door-to-door socio-economic data of its kind, guided by one principle: no one should be left behind. Because if something is not measured, ladies and gentlemen, it cannot be fixed. So our first priority was shelter. Under the flagship program of my government, in Urdu it is called Apni Chhat Apna Ghar, my roof, my home, is delivering one of the fastest and largest affordable housing initiatives in the world through zero interest. And ladies and gentlemen, I'm very happy to share with you that in just less than a year, 160 families have received housing support, and more than 100,000 families have completed and already moved into their new homes. But ladies and gentlemen, behind every number is a challenge. A mother no longer
fearing rain on her children, a father finally able to say that this is my home. This is not just housing, ladies and gentlemen. This is a dignity. This is dignity made permanent. Through our Model Villages program, more than 2,000 villages are being transformed across Punjab with clean drinking water, with sanitation, sewage, drainage, paved street, and solar infrastructure. Access to clean drinking water has become a central public health and human dignity priority for me across Punjab. For the first time at this scale, ladies and gentlemen, Punjab is expanding clean drinking water infrastructure across urban and rural communities alike through new filtration systems, upgraded supply networks, and sustainable water solutions. Because no woman should have to walk miles carrying water for her family, and no child should suffer because of unsafe drinking water. Because dignity must not depend on geography. When villages are dignified, cities are strengthened. Rural uplift is urban resilience. Punjab has launched a historic urban development program of more than $2 billion across Punjab, rebuilding roads, drainage, sewage, water storage, and urban resilient infrastructure. More than, just in 2 years' time, Excellencies, more than 30,000 kilometers of roads have been constructed and completed, reconnecting communities, restoring mobility and economic activity in just 2 years. There is a lot more to come, inshallah. Urban flooding resilience is now being systemically strengthened across Punjab. After last year's flooding events, we had devastating floods last year that displaced about 5 million families. And to rehabilitate them was no mean feat, ladies and gentlemen. So now we immediately shifted toward flood resilient infrastructure and climate adaptive urban planning. This is the first time in decades that urban flooding is being addressed in a structured and data-driven way. For the first time, under magnificent Punjab, we are undertaking a comprehensive revival of tourism, heritage, and cultural infrastructure across Punjab. More than 100 heritage sites, museums, archaeological landmarks, ecotourism destinations, and religious sites are under renovation, restoration, preservation, and rescue, reconnecting our people with history, identity, and culture, while making our cities more tourist-friendly, inclusive, and globally connected. Lahore, the capital of Punjab, is a walking museum and the cultural heartbeat of Pakistan, has proudly been declared the ecotourism capital for 2026 and 2027. The SCO has also recognized Lahore as a major tourism and cultural destination. I invite you all earnestly to come and see the magnificence that Punjab holds. This revival is not only about preserving the past. It is about creating opportunity, strengthening identity, and opening our cities to the world with pride, humility, and confidence. Through our flagship Suthra Punjab, means Clean Punjab program, more than 150,000 sanitation workers serve the province every single day in multiple shifts, making it one of the world's largest solid waste collection programs. This initiative is now being strengthened and modernized
with a clear direction toward a waste to value transition, where solid waste will gradually be processed into recycling streams, compost, and energy recovery systems. This marks an important shift from traditional sanitation towards a circular economy model where cities are not only kept clean, but also designed to become more resource efficient, sustainable, and future ready. A clean city is not only dignity, it is sustainability in action. Air quality has become a central priority. With a multi-sectoral, technology-driven approach to smog control, focused on enforcement, monitoring, real-time monitoring and compliance, clean air now in Punjab is not a privilege, it is a right. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब कर रही थीं। उनका कहना था, भरपूर मेहमान नवाजी पर आज़रबाईजान की मशकूर हूँ। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज़ है। मज़ीद कहा, पाकिस्तान की क़यादत और आवाम की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लेकर आई हूँ। आज़रबाईजान के बानी सदर हैदर अलीयूफ पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। सदर इल्हाम अलीयूफ की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। मज़ीद कहा, जामे इक़दामात से पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शहर सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। Expanded the Safe City technology-driven camera surveillance program to all parts of Punjab. The whole of Punjab is now CCTV monitored. Because I believe that safe cities are not only about surveillance and keeping an eye on law and order. They are about technology, they're about prevention, they are about protection, especially for the vulnerable sections of the society, for women and children and every citizen. Excellencies, my dear friends, ladies and gentlemen, Honorable President of Azerbaijan today rightly said in the morning opening session that development demands courage, because courage leads to bold decision making and decision making leads to effective implementation. I fully agree with this guiding principle, and this is what I am taking home, Excellencies, because courage is at the heart of every meaningful reform and project I am pursuing for the last 2 years. From housing to urban resilience, every project I have undertaken is driven by bold and daring spirit to change the status quo. For every leader, this strikes a chord that development is never cautious. It is the courage that makes all the difference. Friends, the success of government is not measured in speeches, but in lives changed, in lives improved. From Baku, a city of transformation, we carry a shared message. Resilient cities are not a privilege. They are right for all humanity. Let us turn vision into action and ambition into impact so that our cities are defined not by inequality, but by dignity, resilience, and hope. Thank you, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad, Azerbaijan Zindabad. Thank you. Thank you very much, Excellency. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब कर रही थीं। उनका कहना था कि भरपूर मेहमान नवाजी पर आज़रबाईजान की मशकूर हूँ। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज़ है। मज़ीद कहा, पाकिस्तान की क़यादत और आवाम की तरफ से बहुत मोहब्बत भरा पैगाम लाई हूँ। आज़रबाईजान के बानी सदर हैदर अलीयूफ पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। सदर इल्हाम अलीयूफ की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। बुलेटिन में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमेरिका से शेयर कर दी हैं। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी तजावीज़ इत्तेवार की रात अमेरिका के साथ शेयर की हैं। नजरसानी तजावीज़ का मकसद ईरान अमेरिका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बाकाई कहते हैं, ईरान और अमेरिका ने हालिया तजावीज़ पर रद्द अमल और तबसरों का तबादला किया है। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकराती अमल मुसलसल जारी है। ईरान की खित्ते के किसी भी मुल्क बशमूल यूएई के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात को हालिया वाकयात से सबक सीखना चाहिए। ईरान और ओमान की तकनीकी टीम्स ने मुलाकात की। आपना हुर्मस में महफूज आमदोरफ्त के लिए निज़ाम पर बातचीत हुई है। अमेरिका का ईरान से 400 किलो अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने का मुतालबा। वाशिंगटन का ईरान को जंगी नुकसान के मुआवजे की अदायगी से भी इनकार। अमरीकी मुतालिबात की नई तफसीलात सामने आ चुकी। ईरानी खबर एजेंसी फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सिर्फ एक जोहरी मरकज को फाल रखने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीका का मुंजमद असासों का 25% हिस्सा भी जारी करने से इनकार। जंगबंदी को भी मुज़ाकरात से मशरूत किया जा रहा है। तो नाज़रीन, अमेरिका का ईरान के खिलाफ फिर जंगी ऑप्शन पर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सक्यूज की अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई। सदर ट्रंप ने कल सिचुएशन रूम में कौमी सलामती टीम का अहम इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर गौर किया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज कौमी सलामती टीम से आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई है। पेंटागन ने ईरान में तवानाई के बुनियादी ढांचे और मुमकिना हमलों के मंसूबे तैयार कर लिए हैं। अमरीकी कार्गो तैयारे असलहा और गोला बारूद लेकर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक असलहे की तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियों का हिस्सा है। 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहे की तरसील की गई। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया। तेहरान के साथ सिर्फ बाइज़्ज़त तरीके से ही बातचीत हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब, कहा बातचीत नहीं करेंगे तो क्या हमेशा जंग ही करते रहेंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं। सिर्फ दुश्मन मुश्किलात का शिकार और ईरान मुकम्मल तौर पर खुशहाल है। दुश्मन को भी मसाइल हैं और हमें भी मसाइल हैं। ईरान रोज़ाना 100 मिलियन लीटर तेल पैदा करता है। तेहरान की ज़रूरत 150 मिलियन लीटर तक पहुँच चुकी है। तेल की पैदावार में कमी से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। ईरानी रहनुमाओं को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा है। अब भी ईरान मुआहिदा समझता हूं और चाहता हूं कि हम भी डील चाहते हैं, लेकिन हालात साजगार नहीं। सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पूरी कोशिश है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात एक और दौर इस्लामाबाद में हो। हम दूसरे दौर और अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार संडे टाइम को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। आलमी क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा के किरदार की भी तारीफ, कहा अफगानिस्तान से कहा था कि जमानत दें, दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाक भारत जंग में सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो जनूबी एशिया में बड़ी तबाही होती। वज़ीर आज़म की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार, फ्रीकेंट से तहम्मुल की अपील। एक्स पर बयान देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून की तहत जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात नागुज़ीर करार। कशीदगी में कमी के लिए सियासी और सफारती रास्ता ही वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जौहरी तनसीबात को जानबूझकर निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ
खिलाफ वर्जी है। जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए आलमी कावानीन की पासदारी करें, किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे कशीदगी बढ़ने का खदशा हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कतर के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी से टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर दोनों जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित इंतहाई अहम है। कतरी वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और जारी सिफारती काबशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तनासिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं, रवां हफ्ते अहम फैसले मतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की रवां हफ्ते मुलाकात होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात इस्लामाबाद में होगी, जबकि मुलाकात मोहसिन नकवी की ईरान से वापसी पर होगी। ज़राए ने बताया है कि मुलाकात में मोहसिन नकवी ICC की जानिब से ICC बोर्ड मीटिंग और IPL का फाइनल देखने की दावत के हवाले से बात करेंगे। वाज़ेह रहे कि ICC बोर्ड मीटिंग का इजलास 30 और 31 मई को भारतीय शहर अहमदाबाद में शेड्यूल है। ICC के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल IPL का फाइनल देखने के लिए दावत दे रखी है। याद रखें कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भारत जाकर मीटिंग में शिरकत और IPL का फाइनल देखना पैट्रन इन चीफ शहबाज शरीफ की इजाजत से मशरूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुकानों और मार्केटों के औकातकार से मुतालिक पाबंदी में नरमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानें, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स 31 मई में तक रात 8 बजे तक बंदिश की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 6 अप्रैल के नोटिफिकेशन से आर्जी इस्तिस्ना दे दिया। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर्स, खाने पीने और रोजमर्रा अशिया की दुकानों को भी रिलीफ मिल चुका है। फैसले का इतलाक फौरी तौर पर होगा। इस्लामाबाद में दुकानें और बाजार पूरा हफ्ता वक्त की पाबंदी के बगैर खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत पहले ही ईद उल अज़हा के बायस दुकानें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी में 1 जून तक रिलीफ दे चुकी है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को CNG सेक्टर को गैस फ्राहमी की मअतली पर खत मसला हल करने का मुतालिबा कर दिया। खत के मतन में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, सूबे को आइनी हक से महरूम न किया जाए। सूबा करीबन 494 MMCFD गैस पैदा करता है, जबकि इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFD है। खैबर पख्तूनख्वा के CNG सेक्टर को 36 से 40 MMCFD गैस दरकार है, जो खाद के शोबे को मुंतकिल की गई है। CNG सेक्टर को गैस बंदी से सूबे में बेचैनी और अमनो अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। खत में मज़ीद कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 158 के तहत गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस इस्तेमाल का पहला हक हासिल है। पेशावर हाई कोर्ट में CNG स्टेशन की बंदिश को गैर मुनसिफाना करार दे चुकी है। नाज़रीन, तालिबान रजीम के ज़ेरे साया पनपती दहशतगर्दी यूरोप के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। यूरोपीय यूनियन की खुफिया रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी अब सिर्फ खित्ते तक महदूद न रही, सिक्योरिटी खतरात यूरोप तक पहुँच चुके हैं। तमाम यूरोपीय यूनियन की लीक शुदा थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ चुके। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से उभरते सिक्योरिटी खतरात के बायस यूरोपीय यूनियन को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के संगीन मसाइल का सामना है। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम दाइश खरासान इस वक्त पूरे यूरोप के लिए संगीन तरीन
बैरूनी खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह टेलीग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 12 साल तक के कम उम्र बच्चों की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। खेल के तीसरे रोज बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने पूरे एतमाद तरीके से बैटिंग की, जबकि सलहट में खेले जा रहे मैच के तीसरे रोज बांग्लादेशी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। पहली इनिंग्स के खसारे को मिलाकर अब पाकिस्तान को ये टेस्ट जीतने के लिए रिकॉर्ड 437 रन बनाना होंगे। बांग्लादेश की शानदार बैटिंग और मजबूत गिरफ्त के बाद अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना और इस मैच को हार से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की जानिब से मुशफिकुर रहमान ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लिटन दास 69, महमूद उल हसन 52, मोमिन उल हक 30 और तेजुल इस्लाम 22 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली ने 2 जबकि 1 विकेट मोहम्मद अब्बास ने हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी ने 2 ओवर खेले और कोई रन नहीं बनाया। इसके बाद तीसरे रोज का खेल खत्म कर दिया गया। The crease. It can't be a 50 odd and a 60 odd and then getting out. Oh, bowled him! What a beauty that is! Brilliant. I don't know whether it's a legal delivery or not. We've got to pause a little. Umpire is also pausing. Yeah, it's a legal one. And he's gone through the defense there with a peach. तो नाज़रीन, महकमा लाइफ स्टॉक ने 20 मई से कोयटा में सस्ती मवेशी मंडी लगाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम से, जो डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक बलोचिस्तान डॉक्टर फारूक खान के साथ मौजूद हैं। जी अकरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुल्क भर में ईद उल अज़हा की मुनासबत से जो है ना जगह जगह पर मवेशी मंडियां लगाई जा रही हैं, इसी तरह से कोयटा में भी महकमा लाइफ स्टॉक के ज़ेरे तमाम हर साल की तरह इस साल भी जो है सस्ती मवेशी मंडी लगाई जा रही है। इस वक्त मौजूद हूँ डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट मोहम्मद फारूक तरीन साहब के हमरा। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या इकदाम करने जा रहे हैं और मजीद उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा सर, इस साल जो मवेशी मंडी लगाई जा रही है आवाम की सहूलत के लिए क्या क्या चीज़ है सर वहाँ? वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी आपकी। हर साल की तरह इस साल भी महकमा उमूर अवानात ने हस्ब रिवायत एक 20 तारीख से, इस महीने की 20 मई से बाकायदा बकरा मंडी का इफ्ताह हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म बुरी रोड पर वाक़या है। तो मेन मकसद यही है कि लोगों को एक सस्ता, सेहतमंद और बीमारियों से साफ जानवर दिया जाए। तो लाइफ स्टॉक की यही ख्वाहिश है और यही इसी पर चल रहे हैं कि हम लोगों को वो जानवर मुहैया करें जो बीमारी फ्री हो। तो पिछले साल की तरह इस साल भी यही होगा कि सेहतमंद जानवर वहाँ पाएंगे। बाकायदा हमारे डॉक्टर जो ही जानवर मंडी में आएगा उसको पहले चेक करेंगे कि कोई बीमारी तो नहीं है या कोई इसको टिक्स तो नहीं है। फिर जब वो जानवर वहां पर आएंगे, उसका बाकायदा अलग से जगह दिया हुआ है, तो वहां पर जानवर 1275 रुपया फी किलो जिंदा इस साल रेट रखा गया है। और ओपन मार्केट में अभी आप देखिए 1400-1500 में बिक रहा है। तो इसी लिहाज से आप देखिए 200-250 रुपये फी किलो हम लोग आवाम को कम रेट पर एक सेहतमंद जानवर मुहैया कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना जैसे कि डीजी साहब का ये कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी जो है ना सस्ती मवेशी मंडी लगाई जा रही है। इस हवाले से महकमा लाइव स्टॉक जो है मुकम्मल तौर पर फाल है। उनका ये कहना है कि जो कांगो वायरस है उसके फैलाव के हवाले से उसके तदारुक के लिए भी जो तमाम हिफाजती मेजर्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। जी
नाज़रीन, उकाड़ा में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम तकरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें तलबा और तालिबात ने ख़वातीन के किरदार और माशरती अहमियत को मुअस्सर अंदाज में उजागर किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है के उन्वान से तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शुजाउद्दीन बतौर मेहमान खुसूसी थे। सरगोदा में पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। आखिरी रोज तकरीरी मुकाबलेजात का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अल्तमिश भट्टी की इस रिपोर्ट में। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स सरगोधा के ज़ेरे एहतमाम हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ के उन्वान से जारी 3 रोज़ा फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। तीनों प्रोग्रामों में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। आखिरी दिन की तकरीब की मेहमान खुसूसी MNA सरगोधा मोहतरमा इरम हामिद हमीद थीं। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल जाहिद इकबाल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की, जबकि शुरका की सलाहियतों को सराहते हुए पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स सरगोधा की काविशों को भी खिराज तहसीन पेश किया। तकरीरी मुकाबलेजात में पहली पोजीशन मोइज़ इरफान, दूसरी पोजीशन महरीन सैयद, जबकि तीसरी पोजीशन एहसन अब्बास ने हासिल की। तीनों तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने फेस्टिवल को खवातीन के हुकूक, शऊर और मुस्बत मुआशरती अक़दार के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम करार दिया। कैमरामैन टीम के साथ अल्तमश भट्टी, TV टुडे, सरगोधा। नाज़रीन, डेरा गाजी खान में पेशावर गदागरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। ज़िले और तहसील सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद ने ज़ेरे सदारत इंसदाद गदागरी से मुतालिक ज़िले कमेटी का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सोशल वेलफेयर, पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, NGOs और दीगर मुतल्लिका इदारों की नुमाइंदगान ने शिरकत की है। इजलास में पेशावर गदागरों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ और हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मीरपुर माथेलो में यूनियन काउंसिल रेनी के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान डिप्टी कमिश्नर घोटकी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और सिक्योरिटी और वोटिंग अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कनरानी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल माजिद अब्बासी ने यूनियन काउंसिल रेनी में जारी ज़िमनी इंतखाब के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात, वोटिंग के अमल और पोलिंग स्टाफ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से तमाम 7 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार देते हुए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। फैसलाबाद में पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के गिर्द घेरा तंग करते हुए कार्रवाई के दौरान शराब की बड़ी खेप पकड़ ली। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम वकास बशीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से मुख्तलिफ ब्रांडेड शराब की 100 से ज्यादा बोतलें बरामद की गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ईद उल अज़हा के आयाम में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब सप्लाई करने की मनसूबाबंदी बना रहा था। कार्रवाई SHO गाजी रिजवान जावेद और ASI मोहम्मद इमरान ने अंजाम दी, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बैक ट्रेस सोर्सेज के हवाले से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दादू में बुजुर्ग अल्लादित्तू लगारी और उनके बेटों ने सिंध प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए झूठे मुकदमात में मुलव्वस किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील कर दी। दादू के इलाके मरकपुर के रिहायशियों ने सिंध प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां बुजुर्ग अल्लादित्तू लगारी और उनके बेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अपने भतीजे जाबिर लगारी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं और रुखसाना या उसके वर्सा से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, मिट्टी में थर एजुकेशन अलायंस के ताउन से लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई की तरबियत मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक्किद हुई, जहां तालिबात में सिलाई मशीनें और असनाद तकसीम की गई। मट्ठी में मुनक्किदा तकरीब में जिला काउंसिल थर पारकर की वाइस चेयरपर्सन किमला भेल, तालीमी अफसरान, गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल और थर एजुकेशन अलायंस के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान 4 माह की तरबियत मुकम्मल करने वाली 25 तालिबात में असनाद और सिलाई मशीनें तकसीम की गई हैं, ताकि वो अपने हुनर को रोजगार में तब्दील कर सकें।
शिकारीपुर में खानपुर डैम पर नहाते हुए पाक फौज का जवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक नहाते हुए तबीयत खराब होने पर वो मुबैना तौर पर हार्ट अटैक का शिकार हुआ। वाक़े के वक्त मुतवफ़्फ़ी का हकीकी मामू भी उसके हमरा था। इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंची, जबकि नाश को डैम से निकाल कर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फजा फैल गई और अहले खाना ने अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, शरकपुर शरीफ में इदारा मुआरिफ फ़ख्र अल मशाइख आस्ताना आलिया के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़ख्र अल मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से मुमताज़ उलमा, मुहक्किकीन और दानिशवरों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि खानका शरकपुर शरीफ ने क़याम पाकिस्तान से कबल और बाद मुस्लिम फ़िक्र और तहजीब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। साबिक़ वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद समेत दीगर स्कॉलर्स ने हज़रत फ़ख्र अल मशाइख की इल्मी खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया और कहा कि उनका इल्मी ज़ख़ीरा आज भी मुहक्किकीन के लिए कीमती सरमाया है। तहसील हजरू में गाजी इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर तेज रफ्तार कार टायर फटने से उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। नाज़रीन, तहसील हजरू में गाजी इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर 4 सदा से रावलपिंडी जाने वाली तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिसके बायस गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 30 साला सलमान मौका पर जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंची। जख्मियों को फौरी तौर पर निजी गाड़ी के जरिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जाँ बहक शख्स की लाश रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।